ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آدھی رات کو جب حازم شاہ کی آنکھ کھلی تو سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس حسین مورت کو دیکھتا ہی چلا گیا۔ وہ بمشکل 17 یا 18 کی لگ رہی تھی۔ کسی لڑکی کا میرے کمرے میں کیا کام؟ وہ کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ ایک ٹیس سی اٹھی اور وہ درد کی شدت سے بے حال ہو گیا۔ اس کا بازو زخمی تھا۔ وہ ایک پل کو بھول گیا۔ درد کی تیز لہر میں ایک بار پھر اس کی نظر لڑکی پر پڑی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک چکا تھا اور بالوں کی لٹیں اس کے حسین چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ اس کی گود میں دھرے تھے، جبکہ اس کی نازک پنکھڑی جیسے ہونٹ آدھے کھلے تھے جو اس کا ایمان خراب کرنے لگے۔ تو اس نے نظریں دوسری طرف پھیر لی۔ وہ انتہائی مضبوط کردار کا مالک تھا۔ خدا جانے کس نے اس کا امتحان لینے کی غرض سے اس لڑکی کو اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ غصے میں سوچنے لگا، یہ حویلی والے اتنے ایڈوانس کب سے ہو گئے کہ ایک جوان لڑکی کو مرد کے کمرے میں بغیر کسی نکاح کے جانے کی اجازت دے بیٹھے۔ خود پر قابو پاتے اس نے گہرا سانس لیا اور تکلیف دہ بازو کو سہلاتے ہوئے آہستہ سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس کی نظر وال کلاک پر گئی جہاں اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، لیکن بند کھڑکیوں سے ٹکراتی تیز ہوائیں طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک خیال سرسرایا، کہیں یہ کوئی اور مخلوق تو نہیں؟ کوئی جن، کوئی سایہ، کوئی ایسی مخلوق جو حسین عورت کا روپ دھار کر مردوں کو بہکانے آتی ہو؟ ویسے بھی یہ پہاڑی علاقہ تھا اور یہاں آسیب کی لوگ داستانیں عام پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دل نے دھڑکنا تیز کر دیا۔ چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ آئی، کیونکہ وہ حویلی جہاں عورتوں کے سائے بھی مردوں کے کمروں سے دور رکھے جاتے تھے، وہاں اتنی رات گئے ایک خوبرو نوجوان لڑکی کا اس کے کمرے میں ہونا، وہ بھی بغیر نکاح کے، اسے شک میں ڈال گیا۔ وہ جوان کثرتی جسم کا مضبوط مرد تھا، مگر ڈر کے باوجود وہ اس لڑکی کے سحر سے خود کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اپنے زخمی بازو کو سینے سے لگا کر اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کو دھیرے سے لڑکی کے گھٹنے کی جانب بڑھایا، جیسے ہلکا سا چھو کر وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وہ جو بھی ہے اصل ہے یا فریب۔ انگلیاں جیسے ہی اس کے لباس کو چھوئیں، لڑکی کی پلکیں لرزیں۔ اچانک اس کی نیم واں آنکھیں کھل گئیں۔ گرے کلر کی آنکھیں، اگر یہ لینس نہیں تھے تو سیدھا اس کے دل پر وار کر چکی تھی۔ وہ گھبرا کر کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا دوپٹہ زمین پر گر چکا تھا اور چہرے پر شدید گھبراہٹ سی در آئی۔ حازم اس کے قریب گیا تو وہ مرنے والی ہو گئی، ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ اس کا گریز اور خوف دیکھ کر حازم پیچھے ہٹا۔ اسے ایک دم ندامت نے گھیر لیا۔ وہ خود کو برا بھلا کہنے لگا کہ کیوں اس کی طرف بڑھا، جبکہ وہ ہمیشہ عورت کی عزت کا قائل رہا ہے۔ مگر اس لڑکی کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا جو اس کے اصولوں کو بھی ہلا رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ لڑکی ہکلاتے ہوئے دھیرے سے بولی، مجھے دادی سرکار نے آپ کی تیمارداری کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کی دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں اتنی نرمی تھی کہ حازم کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ بول نہ سکا، بس دیکھتا رہ گیا۔ دبلی پتلی سی لڑکی بار بار اپنا دوپٹہ سنبھالے جاتی تھی۔ اس کی میڈیسن کا ڈبہ اٹھا کر اس کے پاس لائی، پھر اس نے گلاس پانی سے بھر کر اس کی طرف بڑھایا، جسے حازم نے ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا اور خالی گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ بے خیالی میں حازم کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ٹکرا گئیں تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کے ہاتھ یخ ٹھنڈے تھے، گویا وہ اس کی موجودگی سے شدید ڈری ہوئی ہے۔ حازم اس کا ڈر کم کرنے کے لیے ایک دم بیڈ پر بیٹھ گیا اور پھر اس کی طرف غصے سے دیکھ کر بولا، کیا دادی سرکار نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ رات کے اس پہر تمہیں کس کی تیمارداری کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ تو اس نے انکار میں سر ہلایا۔ تو کیا تم نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ تو اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا، جبکہ حازم کا دل چاہ رہا تھا وہ بات کرے۔ جاؤ تم یہاں سے، وہ اکھڑے لہجے میں بولا۔ تو اس نے گھبرا کر پوچھا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بتا دیں، میں ٹھیک کر دوں گی، یا اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو بتا دیں۔ اس نے انتہائی سرد نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں شاید بات سمجھنے میں کوئی دقت ہے،
जब मैंने कह दिया कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं तो तुम्हें यहां से फौरन चले जाना चाहिए। तो उसने निगाह उठाकर हाजिम की तरफ देखा। हाजिम को ऐसे लगा जैसे वो इंतहाई मंजी हुई सायरा है। वो सहर फूंक कर अपना दाव उसके दिल पर चला चुकी है। हालांकि वो मोहब्बत जैसे जज्बे को कभी खातिर में नहीं लाया। वो फौरन उसके कमरे से निकल गई, मगर उसके जाते ही हाजिम एकदम से खुद को खाली खाली महसूस करने लगा। कमरे की तारीकी पहले से बढ़ती हुई महसूस हुई और बाजू में दर्द की शिद्दत ने उसे कराहने पर मजबूर कर दिया। उसे दादी सरकार पर शदीद गुस्सा आने लगा। भला ये भी कोई बात है कि उसके कमरे में रात के इस पहर किसी लड़की को भेज दिया जाए? क्या हवेली के नौकर मर गए हैं? हद हो गई, वो कुढ़ते हुए सोचने लगा। थोड़ी देर बाद तहज्जुद का वक्त होने वाला था। नींद तो उसकी आंखों से वो चुरा कर पहले ही ले जा चुकी थी। लिहाजा वो धीरे धीरे कदम उठाता दादी सरकार के कमरे की तरफ बढ़ा, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त वो तहज्जुद के लिए उठेंगी। हवेली में हर तरफ एक हू का आलम था। इस हवेली में उनकी तीसरी पुश्त रह रही थी। हाजिम की माँ तो उसकी पैदाइश पर ही फौत हो गई थी और वालिद का कत्ल उसे बंजर कर गया। उसका नाता अगर हवेली से जुड़ा भी था तो उसकी वजह दादी सरकार थी। वो जब भी किसी वजह से उलझता तो सीधा उन्हीं के कमरे में जाता, और आज तो उलझन की वजह उन्हीं का हुक्म था जिसके तहत वो लड़की उसके कमरे में रात के इस पहर आई। मगर वो नाजुक सी खामोश सी लड़की उसके जहन पर ऐसे तारी हो गई कि वो चाह कर भी उसका ख्याल एक सेकंड के लिए भी अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा था। एक तरफ तो अपने दिलो दिमाग की कैफियत थी जो उसे उलझा रही थी, दूसरी तरफ एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब वो सिर्फ दादी सरकार से ही ले सकता था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आहिस्ता से दस्तक दी और बिना जवाब का इंतजार किए अंदर दाखिल हुआ। दादी जायनुमाज बिछा रही थी। चेहरे पर वही पुरसकून तासुर, सफेद दुपट्टे के नीचे से झांकता नूरानी चेहरा और आंखों में वो अपनायत। जो ही उनकी निगाह हाजिम पर पड़ी, उनके लबों पर एक मानूस सी मुस्कुराहट फैल गई। वो नरमी से बोली, आओ हाजिम, कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना? हाजिम ने उनकी तरफ गहरी नजरों से देखा। कुछ देर खामोश खड़ा रहा, जैसे अल्फाज का चुनाव सोच रहा हो। फिर धीरे से बोला, माना कि मैं काफी अरसे बाद इस हवेली में आया हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है दादी। क्या आपके उसूल बदल गए हैं या हवेली वालों के? दादी ने जायनुमाज को सिरे से मोड़ा और चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या बात हो गई है हाजिम? हाजिम ने पलके झपकाए बगैर उनकी आंखों में झांका। आपने किसी लड़की को मेरे कमरे में मेरी तीमारदारी के लिए भेजा? क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्या इस हवेली के नौकर मर गए हैं? दादी ने उसकी आंखों में छुपी बेचैनी को पढ़ने की कोशिश की। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर एक गहरी सांस लेकर जायनुमाज पर बैठ गई। उनके लहजे में थकन थी, लेकिन साथ ही एक बोझ भी। क्या तुम उस लड़की को जानते हो हाजिम? नहीं, मैंने उसे पहली बार देखा है। कौन है वो? शक्ल से तो मुलाजमा भी नहीं लगती, और मिजाज में ऐसी खामोशी कि जैसे सदियों की चुप ओढ़ रखी हो। उसका नाम पलवशा है। भली मानस लड़की है, लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं, ये वही लड़की है जो वन्नी में आई थी। दादी के मुंह से ये निकले अल्फाज किसी कयामत से कम नहीं थे। हाजिम एकदम साकित हो गया, फिर झटके से उठकर कमरे में टहलने लगा। पलवशा? उसके होंठों पर उसका नाम फिसला। 3 साल पहले जिसे बिना देखे उसने धुतकार दिया था, वो उसके वालिद के कातिल खानदान की बेटी थी, जो वन्नी में आई थी, जिससे हाजिम दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसी लम्हे हाजिम शाह के हुक्म पर उसे हवेली के पिछले क्वार्टर में भेजवाया गया, मगर पलटकर फिर ना कभी देखा और ना पूछा कि उसके साथ क्या सलूक रखा जा रहा था। दादी की आंखों में अब परेशानी थी, जबकि हाजिम के चेहरे पर अजब कैफियत थी। वो अब 3 साल पहले के हाजिम से काफी मुख्तलिफ था। वो उसे बगौर देखती जा रही थी, फिर आहिस्ता से बोली, आज 3 साल हो गए हैं वो लड़की इस हवेली में है और न जाने किसके ना करदा गुनाहों की सजा काट रही है। मेरा दिल बहुत कुड़ता है उसके लिए, मगर मैं मजबूर हो गई हूँ हाजिम। तुम्हारी ताई और चच्ची अब हवेली के स्याहो सफ़ेद की मालिक बन बैठी हैं और मुझे दीवार से लगा दिया गया है। मैं कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें बुलाया, कहीं हम किसी मजलूम की आह का शिकार ना हो जाएं। मेरा ज़मीर मुझे बहुत मलामत करता है
हाजिम ने पलटकर दादी को देखा। क्या मतलब दादी, मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं समझा सकती, मेरी नमाज का वक्त हो गया है, लेकिन सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वो लड़की मजीद किसी जुल्म की हकदार नहीं है। अगर उसका निकाह हो जाए तो बेहतर है, वरना एक अकेली जवान जहान, वो भी वन्नी लड़की, उसका यूं हवेली में रहना खतरे से खाली नहीं। हाजिम के कदम साकित हो गए। उसके चेहरे पर हैरत और बेजारी का मिला जुला अक्स उभरा। तो दादी सरकार, क्या आपकी बात का मतलब ये है कि मैं उसके लिए कुर्बानी का बकरा बन जाऊं? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं शादी जैसे बंधन से दूर भागता हूं। दादी की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, उनका लहजा शिकस्ता सा हो गया। हाजिम, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि दो टूटे हुए लोग ही एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। तुमने भी जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, बहुत तकलीफें सही हैं। मुझे यकीन है सिर्फ तुम ही इस लड़की के दुख का मदावा कर सकते हो। हाजिम ने अपनी नजरें झुकाई। दादी, मैं अभी कोई वादा नहीं कर सकता, ना आप मुझसे कोई उम्मीद रखें। वो दो टोक बात करके ऐसे उठा जैसे कमरे से निकल जाना चाहता हो। लेकिन तुम उसे बचा तो सकते हो ना। मैं नहीं चाहती कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरा दिल किसी की आहों और सिसकियों से बोझल हो। मैं बस अपना रास्ता साफ करना चाहती हूं ताकि मेरी अगली मंजिलें आसान हो। दादी की बात सुनकर हाजिम को धचका सा लगा। वो दादी जो उसकी माँ जैसी थी, जो कभी हुक्म देने के बजाय आजिज़ाना राय देती थी, आज पहली बार उसे एक ऐसी बात की डिमांड कर रही थी जिसे पूरा करना हाजिम के बस से बाहर था। मगर दिल के किसी कोने में न जाने क्यों वो परी पैकर पूरी शान से बराजमान थी और उसके सख्त दिल पर दस्तक दे चुकी थी। उसे लगा शायद कुछ ताल्लुक है उस लड़की से जो पहली बार उसके दिल को बेकरारी लग गई थी और पल भर में ही वो उसकी सोचों का महवर बन गई थी। लेकिन अभी वो कुछ नहीं कह सकता था, ना हाँ ना ना। वो शदीद उलझ चुका था तो दादी के कमरे से चुपचाप निकल आया। सुबह होते ही हाजिम हॉस्पिटल के लिए तैयार होकर नीचे उतरा तो जैसे किचन के पास से गुजरते उसे गुस्से से पागल होती चीखती चिंगारती आवाज उसकी समातों के साथ टकराई तो वो ठुठक कर रुक गया। माफ कर दे मुझे, मैंने ऑयल नहीं गिराया। जामी ने मुझे धक्का दिया और मेरा हाथ लगने से उबला हुआ ऑयल गिर गया। ये देखिए, मेरा तो हाथ भी जल गया है। तो थोड़ी अदाएं दिखाओ ना जामी को, चच्ची हाथ नचाकर बोली। हर वक्त तो उसके पीछे पड़ी रहती हो, तभी वो जिधर तुम्हें देखता है उधर ही तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता है। मर्दों का क्या है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत तो लड़की की खराब होती है। तुम कोई छोटी नहीं हो कि इतनी सी बात ना समझ सको, या शायद तुम्हारे खानदान की सारी लड़कियां ऐसी हैं। चच्ची की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि ताई एकदम से बोल पड़ी। खानदान तो इसका अच्छा ही होगा, लेकिन इसके और इसके घर वालों के करतूत गंदे हैं, तभी तो इसके खानदान वालों ने इनके साथ बाइकआउट कर रखा है। पता नहीं इसकी माँ बहनें क्या क्या गुल खिलाती होंगी। वो ऐसी नहीं है, आप उनको बुरा मत कहें, जो कहना है मुझे कहें। ये देखो तो कैसी जबान चलती है इसकी। और ये कहते ही चच्ची ने ताबड़तोड़ उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए तो वो चीखते हुए अपने चेहरे को बचाने लगी। किचन के दरवाजे में खड़ा हाजिम ये मंजर देखकर पीछोताप खाने लगा। सामने का मंजर इस कदर तकलीफ दे था कि उसका वजूद पल भर को सुन हो गया। किचन के बीचों बीच पलवशा खड़ी थी और उसके दाएं बाएं चच्ची और ताई किसी सख्त गीर थानेदारनी की तरह खड़ी थी और वो उनके सामने किसी मुजरिम की तरह सर झुकाई थी। तुम्हें अकल नहीं है, कुकिंग ऑयल गिरा दिया। क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं है? यह हवेली है, तुम्हारा मैका नहीं, समझी? ताई की आवाज कड़कदार थी। चच्ची ने गुस्से से बर्तन दीवार पर दे मारा, फिर बोली, इसका किचन में दाखला बंद करो, ये इस काबिल नहीं है कि किचन में आए। पलवशा के चेहरे पर खौफ, आंखों में नमी देखकर हाजिम अफसुर्दा हो गया। लेकिन सबसे तकलीफ दे मंजर हाजिम को वो लगा जिसमें वो उनके सामने मुसलसल अपने दोनों हाथ जोड़े बार बार उनसे माफ़ी मांग रही थी, मगर वो दोनों बाइख्तियार खवातीन जैसे रहम से खाली हो चुकी थी। एक तरफ से तमांचा पड़ रहा था, दूसरी तरफ से उसके स्याह रेशमी बाल उनकी मुट्ठी में जकड़े हुए थे। पलवशा ने सर झुकाया हुआ था, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। लेकिन अचानक हाजिम की नज़र उसके दाएं हाथ पर गई।
उसका दिल एक लम्हे को बंद हो गया। हाथ की पुश्त जल गई थी और स्याह पड़ गई थी, और इतनी तकलीफ में वो लड़की उनसे मुसलसल माफी मांगते रो रही थी। गुस्से की एक लहर हाजिम के वजूद में दौड़ गई। वो बिना कुछ कहे तेजी से आगे बढ़ा। उसकी ताई और चच्ची पर निगाह पड़ी तो उसकी मौजूदगी से कुछ घबरा गई। ये कैसा शोर है? बाहर मर्दान खाने तक आप लोगों की आवाजें जा रही हैं। क्या हो गया है हमारी हवेली की खवातीन को? अरे देखो तो किचन का क्या हाल करके रख दिया है। इस 2 टके की लड़की ने सारा ऑयल गिरा दिया। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गिरा है चच्ची, कोई कयामत नहीं आ गई। आप लोग देख नहीं रही कि उसका हाथ कितनी बुरी तरह जल गया है? बजाय इसके कि आप उसके हाथ पर मरहम रखें, आप उसे मार रही हैं। क्या इतना सख्त दिल भी इंसान हो सकता है? चलो तुम आओ, मैं तुम्हारे जख्म की बैंडेज कर देता हूं। पलवशा की मासूम रोई रोई आंखें हैरान नजरों से हाजिम को तकने लगी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर जबान ने साथ ना दिया। हाजिम ने नरमी से उसका जख्मी हाथ पकड़कर जैसे ही जख्म का मुआयना किया तो चच्ची की बेटी दुर्रेफिशा मारे हसद के तिल में लाकर बोली, हाजिम क्या तुम जानते भी हो ये कौन है? जब तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता चलेगा ना तो तुम्हारी सारी हमदर्दी उड़न छू हो जाएगी। उसके जहरखन लहजे पर हाजिम ने उसकी तरफ एक गहरी नजर डाली तो दुर्रेफिशा के चेहरे पर एक तारीक साया लहराया। उसके चेहरे की बदलती कैफियत को भांपते हुए दूर अंदेश चच्ची ने फौरन मदाखलत करके बात संभालने की कोशिश की। अरे दुर्रे, इसे क्या पता होगा, ये तो खुद 3 साल के बाद आया है। और मसनूई हमदर्दी का लबादा उड़ते बोली, हाजिम ये लड़की बन्नी में आई है, खा गई हमारे शेर दिल जेठ को। और फिर दुपट्टे में मुंह छुपाकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। हाजिम का जख्म ताज़ा हो गया। बाप की जुदाई ने उसे रंजीदा कर दिया, लेकिन उसने फौरन खून को संभालते हुए कहा, अगर ये बन्नी में आई है तो क्या इस पर जुल्म करना वाजिब हो गया? ताई हाजिम की बात पर एकदम जज्बाती होकर बोली, तुम इस जैसी लड़की से हमदर्दी कर भी कैसे सकते हो जिसके खानदान ने तुम्हारे बाप को बेगुनाह कत्ल कर डाला? अरे तुम कैसे भूल सकते हो? ऐसे खानदान की लड़की को तो सुबह शाम जूते मारे जाएं तो भी कम है, और तुम चले हो इससे हमदर्दी करने। हद करते हो तुम भी हाजिम। हाजिम का चेहरा सख्ती से सुर्ख हो चुका था। उसने आहिस्ता मगर झुंझलाहट से लब खोले। कत्ल इसके खानदान के किसी फर्द ने किया है, इसने नहीं। इंतहाई अफसोस की बात है, आपकी बातें सुनकर तो इंसानियत पर से यकीन उठने लगा है। यकीनन आपकी बेटियों की उम्र की होगी, कुछ तो एहसास करें। ताई और चच्ची के चेहरे का रंग एकदम फक हो गया। वो कीना तोज नजरों से उसे देखने लगी, मगर जबान पर ताला पड़ा हुआ था। वो जानती थी कि हाजिम बदलिहाज तो है, मगर अपने मौक़िफ़ पर चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला भी है, और आने वाले वक्तों में यही लड़का हवेली के तख्त का वारिस है, तमाम इख्तियार का मालिक होगा। उसकी कारोबार ने अभी से हवेली का निज़ाम संभाल रखा था। उससे बिगाड़ लेना अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। इसीलिए वो चुप हो गई। हाजिम ने पलवशा की तरफ देखा जो अब भी साकित खड़ी थी। उसने इशारे से अपने साथ आने को कहा तो वो उसके पीछे पीछे खामोशी से किचन से बाहर निकल आई। वो सीधा उसे बरामदे में ले गया जहां हल्की धूप आ चुकी थी। उसे बैठने को कहा और खुद अंदर अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद वो आया तो उसके हाथ में मेडिसिन का डब्बा था। उसने मेडिसिन का डब्बा खोला और नरमी से उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर जख्म पर दवा लगाने लगा। पलवशा की सांसें चढ़ने लगी और आंखें आंसुओं में डूब गई। हवेली में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया था। उसके लिए यह सब नया था कि हवेली में वो शख्स उसके लिए हमदर्दी दिखा रहा था जो खुद उसके खानदान के हाथों जख्मी था। हाजिम के वालिद का कत्ल इसके बड़े भाई के हाथों हुआ था। हालांकि इसके बड़े भाई ने इस कत्ल का एतराफ़ कभी नहीं किया, बल्कि वो हमेशा एक ही बात कहता रहा कि मुझ पर किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन ना तो उसकी बात कबीले वालों ने कबूल की और ना ही जिरगे वालों ने। चुनाचा जिरगे के फैसले के मुताबिक हाजिम के खानदान में उसकी कमसिन बहन पलवशा वनी होकर आ गई, और अब इस वाक़ये को 3 साल हो गए थे। हाजिम के सख्त बड़े बड़े हाथों में पलवशे की नरमो नाजुक मखरूती उंगलियां हल्की हल्की कपकपा रही थीं, जिन्हें हाजिम मुसलसल
ऑब्जर्व कर रहा था। उसने निगाह उठाकर जब पलवशा के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल दुख से भर गया। इतनी मासूम लड़की अपने खानदान के गुनाहों का कफारा बनी हुई थी। उसने हत्तौल इम्कान कोशिश की कि नरम हाथ लगाए ताकि उसे मज़ीद तकलीफ ना सहनी पड़े, लेकिन खिड़की के पास खड़ी चच्ची और उनकी बेटी दुर्रेफिशा आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख रही थी। उनकी खामोशी किसी आने वाले तूफान की गवाह थी जो अब जल्द हवेली के सकूत को तोड़ने वाला था। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी हो, मैं काफी देर से तुम लोगों को तलाश कर रही हूँ। ताई की आवाज पर वो दोनों पलटी। खैरियत है, यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने एकदम खिड़की से बाहर देखा तो उनकी नजरें हाजिम और पलवशा पर जम गई। फिर वो दो हथड़ अपने सीने पर मारते बोली, अल्लाह अल्लाह, ये हम क्या देख रहे हैं? मुझे तो पहले ही लगता था ये लड़की जादूगरनी है। सच कह रही हैं आप भाभी, चच्ची नफरत से बोली। हवेली का हर मर्द इसके पीछे पागल हुआ फिरता है, अपना जामी देख लो। उसने तो बकायदा मुझे कितनी बार कहा कि मेरा इससे निकाह करवा दो, लेकिन तुम खुद बताओ भला, एक बन्नी लड़की के साथ मैं अपने भाई की शादी कैसे करा दूं? अरे खानदान में तो हमारी नाक कट जाएगी। भला मेरे जामी को लड़कियों की कमी है? उन्होंने ये बात जानबूझकर अपनी जेठानी के सामने की, क्योंकि जब उन्होंने जामी के लिए उनकी बहन की बेटी का हाथ मांगा था, जो जेठानी ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस बात का चच्ची को बेहद अफसोस था। मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से ये बात बताए दे रही हूँ कि ये लड़की इस हवेली के सबसे लायक सपूत को ले उड़ी है। अब अगर कोई हाजिम के हवाले से इस लड़की की हवेलियों की आंखों में ख्वाब पल भी रहा है तो उसे निकाल कर फेंक दो। ये बात ताई ने दुर्रेफिशा के चेहरे की तरफ देखकर जानबूझ कर की। दुर्रेफिशा ने उनको कड़ी नजरों से देखा और मलामती नजरों से अपनी मां की तरफ देखते हुए वहां से पांव पटकते अपने कमरे में चली गई। आप भी ना भाभी, हर वक्त दिल दुखाने वाली बात कर जाती हैं। ए लो, भला बताओ मैंने क्या दिल दुखा दिया तुम्हारा? जो हकीकत देख रही हूं वही बता रही हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। भला हाजिम अपने बाप के कातिल खानदान की बेटी के साथ ब्याह क्यों करेगा? वो तो उससे शदीद नफरत करता है। देखा नहीं था 3 साल पहले कैसे उसने नफरत से धुरकार दिया था, हवेली तक में टिकने नहीं दिया। इसका इंतजाम हवेली से कोसों दूर क्वार्टर में किया और फिर पलटकर पूछा ही नहीं कि उसके साथ इन 3 सालों में क्या हुआ और क्या नहीं। चची ने जरा की। वो 3 साल पहले की बात थी। इस वक्त तो ये लड़की भी दुबली पतली बच्ची सी थी। अब देखो कैसा रूप चढ़ा है। हालांकि बच्चा कुचा खाने को मिलता है, मगर ऐसी जवानी चढ़ी है कि छुपाई नहीं छुपती। हाजिम जैसा लड़का भी मुतासिर हो गया। अब इतनी भी मिस वर्ल्ड नहीं, आपने तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर डाली। ए भाई, मैं तो खुदा लगती कहती हूं। अरे छोड़े भाभी, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई। मैं जरा जाऊं देखूं तो दुर्रेफिशा क्या कर रही है। ये कहकर वो अपनी जान छुड़ाती वहां से चल दी, लेकिन ताई ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। वो जानती थी कि उसने वहां आग लगाई है जहां से अब धुआं भी बाहर नहीं निकलने लगा, और दोनों माँ बेटियां इस आग में जल जल कर खाक होने वाली हैं। ताई की बातें सुनकर दुर्रेफिशा आग बगोला होकर अपने कमरे में आ गई। उसने दुपट्टे को झटके से उतारा और कमरे के कोने में फेंक दिया। आईने के सामने खड़े होकर अपने सरापे पर नजर डाली। किस बात की कमी है मुझ में? हाजिम ने कभी देखना तक गवारा नहीं किया, और अपने दुश्मन की बेटी के लिए इतना दिल जला बैठा कि उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर मरहम लगाता रहा। माई फुट, दिल चाहता है मुंह नोच लूं उस पलवशा का। वो जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में घूमने लगी कि इतने में दरवाजा खुला और उसकी अम्मी अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर सख्ती और आंखों में गुस्सा था। क्या जरूरत थी भाभी के सामने इतना रिएक्ट करने की? वो भी क्या सोचती होंगी? वो सोचती हैं तो एक बार नहीं करोड़ बार सोचें अम्मी। मुझे उनकी सोच की कतन परवाह नहीं। अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ हाजिम की। आपने नहीं देखा वो कैसे पलवशा के पास बैठा उसके हाथ पर मरहम लगा रहा था, जैसे वो उसकी कोई बहुत अजीज हस्ती हो। चची ने दांत पीसते कहा, अरे वो मनहूस पलवशा चीज क्या है? हमसे तो कभी ढंग से बात भी नहीं की हाजिम ने, और उस 2 टके की लड़की पर अपनी हमदर्दियां निछावर कर रहा है। अजीब बेवकूफ लड़का है। मैं तुमसे कह रही हूं दुर्रेफिशा,
ये लड़की कोई ना कोई चांद चढ़ा कर रहेगी, देख लेना तुम। अम्मी, मैं यूं ही परेशान नहीं हो रही। आपने हाजिम का अंदाज देखा है, ये सब ठीक नहीं है। दुर्रफिशा ने कमर पर हाथ रखकर तलखी से कहा तो चच्ची का चेहरा बुझ सा गया। वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, हाँ मैंने भी महसूस किया है, वो ऐसा पहले नहीं था। वो तो बस अपने काम से काम रखता था, मगर अब वो बदल रहा है। वो लड़की वाकई उसके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो फिर कब तक आप खामोश बैठेंगी अम्मी? दुर्रफिशा ने आंखों में नमी लिए पूछा। कब तक मैं उसके नाम पर बैठी रहूंगी? आखिर कोई हक बनता है मेरा भी या नहीं? अरे मैंने कितनी बार तेरी दादी से बात की है, मगर वो बड़ी घुन्नी औरत है। हर बार एक ही बात जवाब देती है कि हाजिम अभी शादी के मूड में नहीं है। तो क्या अब उन्हें यह सब नजर नहीं आ रहा? वो हाजिम को क्यों नहीं रोकती? वो लड़की जो वन्नी के नाम पर यहां आई, अब पूरी हवेली पर छा जाने वाली है। चची ने तेज लहजे में कहा, तुम्हारी दादी सब कुछ देखकर अपनी आंखें बंद करके बैठी हैं। न जाने क्यों उन्हें यह लड़की इंतहाई मजलूम लगती है। दुर्रफिशा ने तब कर कहा, अम्मी खुदा न करे हमें फिर वो मंजर देखना पड़े। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि फिर हाजिम उसके करीब जाए। वो मर क्यों नहीं जाती? 3 सालों में जितना हमने उसे जलील किया है, उसका जिंदा रहना तो बनता ही नहीं था, मगर मानना पड़ेगा बड़ी ढीठ है। चच्ची थोड़ी देर उसे घूरती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर आहिस्ता से बोली, ऐसी ढीठ हड्डी अगर सही मायनों में जलील हो ना, तो अपनी मौत खुद मर जाती है। अम्मी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कोई ऐसा हल चाहिए जो हमेशा के लिए इस लड़की को हमारी नजरों से दूर कर दे। चच्ची की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने बेड के किनारे पर रखा मोबाइल उठाया और किसी नंबर पर कॉल मिलाने लगी। जामी, कहाँ है तू? थोड़ी देर दूसरी तरफ सुनने के बाद वो बोली, फौरन हवेली पहुंच, तेरे मतलब की बात है। जामी एकदम चहक कर बोला, जी बाजी, बस अभी पहुंचता हूं। चच्ची ने जो ही फोन बंद किया तो दुर्रफिशा ने हैरत से अपनी मां की तरफ देखकर कहा, अम्मी, मामू को फोन क्यों किया? चच्ची ने सद लहजे में कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इस पलवशा के बारे में कोई सख्त कदम उठाएं। मगर कैसे अम्मी? तुम बस देखती जाओ। कल से पहले पहले ये लड़की या तो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी या इतनी जिल्लत उठाएगी कि तुम्हारी दादी भी इसे खुद यहां से चलता कर देंगी। दुर्रफिशा ने सुकून का सांस लिया और फिर आईने के सामने खड़ी हो गई। रैक में रखी एक तेज रंग वाली लिपस्टिक उठाई और होंठों पर लगाने लगी। चच्ची कमरे से निकलकर बरामदे में आई। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। कुछ देर बाद जामी आया। उसने हस्बे मामूल सियाह कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर चापलूसी के रंग थे। जी बाजी, आज कैसे अपने भाई की याद आ गई? पलवशा का बंदोबस्त करना है, वो अब खतरा बनने वाली है और मैं अपनी बेटी की राह में किसी कंकर पत्थर को ये इजाजत नहीं दूंगी कि वो इसकी खुशियों का रास्ता रोके। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे कमाल मर्द हो, तुम्हें ये बातें समझानी पड़ रही हैं। तुम्हें पलवशा बहुत पसंद है ना, या अब तुम्हारी नीयत बदल गई? तो वो तेजी से अपना सर हिलाते अपने पीले पीले दांतों की नुमाइश करता बोला, यह भी कोई पूछने वाली बात है बाजी? आप तो मेरे दिल की हालत जानती हैं। तुम जानते हो वो वन्नी में आई है और ये हवेली वाले उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर उस पर ऐसा कोई इल्जाम लग जाए तो फिर हवेली में उसका रहना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। जामी ने दबी आवाज में कहा, समझ गया बाजी, आप बेफिक्र हो जाएं। एक मकरू हंसी उसके चेहरे पर सज गई और फिर वो खामोशी से पलवशा का पत्ता साफ करने के लिए एक बेदाग प्लान बनाने लगे। अंदर दुर्रफिशा मुतमईन नजर आ रही थी। वो हाजिम की कुर्बत के ख्वाब आंखों में सजा रही थी। उसे लग रहा था अब सब कुछ उसके हक में हो जाएगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर खौफजदा भी थी। वो जिस यकीन के साथ हाजिम को अपना समझ बैठी थी, अब वही यकीन रेत की तरह हाथों से फिसलता महसूस हो रहा था। हाजिम की हर तवज्जो अब पलवशा की जानिब झुक रही थी। वो पलवशा जिसे कभी हवेली के पिछले कोने में एक सुनसान स्टोर रूम में रखा गया था, अब हाजिम के हुक्म पर उसे सबसे आरामदेह, वसी और रोशन कमरा दे दिया गया, जहां हर सहूलत मौजूद थी। और तो और हाजिम ने सबके सामने कह दिया था कि आइंदा पलवशा से कोई भी हवेली का काम नहीं लेगा।
ये सब बातें चच्ची और दुर्रफिशा को अंदर से खा रही थी। उन्होंने हाजिम का बतौर दामाद का ख्वाब ना सिर्फ देखा था बल्कि अपनी बेटी की आंखों में भी हाजिम का ख्वाब सजा दिया था, और अब उन ख्वाबों में एक वन्नी लड़की आकर जगह बनाने लगी थी। जो चच्ची उनकी बेटी दुर्रफिशा के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। वो अपने तजर्बे और फितरी समझ बूझ से जान गई थी कि हाजिम अंदर ही अंदर पलवशा के लिए नरम गोशा रखता है, और अगर अब कुछ ना किया गया तो कल वही नरम गोशा मोहब्बत में बदल जाएगा। चुनाचा चच्ची ने जामी को अपने मंसूबे से आगाह किया, जो पलवशा को हासिल करने के ख्वाब एक अरसा दराज से देख रहा था। वो था तो उनका सगा भाई, मगर किसी जहरीले सांप से कम नहीं था। जामी पहले ही पलवशा पर बुरी निगाह रखता था, मगर दादी के डर से वो कुछ कर ना पाया। लेकिन अब पलवशा को हासिल करने का उसे मौका मिलने वाला था। चच्ची को जब यकीन हो गया कि जामी उनकी बात मुकम्मल तौर पर समझ गया है तो वो मुतमईन हो गई। उसने जामी से कहा, अब वक्त आ गया है इस लड़की को इसकी औकात याद दिला दी जाए। तुम्हें यह काम बस आज रात करना है ताकि पूरी हवेली में उसकी इज्जत खाक हो जाए। जामी इंतहाई पुरजोश था। उसके बस में होता तो वह अभी के अभी इस मंसूबे पर अमल कर डालता, लेकिन उसे रात होने का इंतजार करना था। लेकिन यही इंतजार उसके लिए तवील होता जा रहा था। उस रात तेज बारिश हो रही थी। कमरे में पलवशा तन्हा बैठी थी। उसने सोने की कोशिश की मगर नींद उससे कोसों दूर थी, लिहाजा वो उठ गई। अचानक दरवाजे के करीब उसे अजब आवाज आई, जैसे बाहर से दरवाजे के लॉक में कोई बार बार चाबी लगा रहा है। वो डरकर दरवाजे को देखने लगी। जब कुछ समझ ना लगी तो घबराकर कंबल में सिमट गई। उसी लम्हे दरवाजा आहिस्ता से खुला। वो चौंक कर उठी और जब उसकी निगाह जामी पर पड़ी तो उसके हलक से चीख निकल गई। खौफ से उसकी आंखें फैल गईं और वो पीछे हटी। जामी, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने मेरे कमरे की चाबी कहां से हासिल की और क्यों मेरे कमरे में आए हो? वो एक ही सांस में बोलती चली गई तो जामी ने मुस्कुराकर दरवाजा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर दरिंदगी थी। तुम्हें देखने आया हूं मेरी जान, तुम मेरे ख्वाबों की रानी हो और अब हकीकत बनने वाली हो। पलवशा ने कपकपाते लब्बों से कहा, खबरदार, जहां पर खड़े हो वहीं खड़े रहो। अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो यकीन रखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगी मेरी जान? तुम तो खुद एक सहमी हुई चिड़िया की मानिंद हो। ज्यादा से ज्यादा मेरी बाहों में फड़फड़ाओगी तो यकीन करो मुझे तुम्हारा यूं घबराकर मचलना बहुत अच्छा लगेगा। वो 2 कदम जो ही उसके करीब आया तो पलवशा चीख कर रोने लगी। चले जाओ यहां से, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और चच्ची, ताई और 2 मुलाजमाएं अंदर आ गईं। उन्होंने जैसे ही जामी को पलवशा के कमरे में देखा तो ताई चीखें मारने लगी। हाय हाय, ये क्या हो रहा है? जामी ने फौरन चेहरे पर मासूमियत सजाई और कहा, मैं खुद नहीं आया, इसने मुझे बुलाया था। कहा था कि कुछ जरूरी बात है। मैं तो समझा शायद कोई मसला है, पर यह तो मुझसे मोहब्बत जताने लगी। कहने लगी मैं बहुत तरसी हुई हूं। तो जामी की बातें सुनकर ताई अपने गाल पीट कर बोली, हाय, ऊपर से कितनी मासूम दिखाई देती है और अंदर से कितनी गंदी है, इसे शर्म भी ना आई। पलवशा खुद पर इल्जाम सुनकर पानी पानी हो गई। उसने घबराकर ताई की तरफ देखा और रोंदे हुए लहजे में कहा, ये झूठ बोल रहा है, आप इसकी खबीस बातों पर कैसे यकीन कर सकती हैं? तो एकदम चच्ची अपने भाई के खिलाफ पलवशा की बातें सुनकर गुस्से में आ गई और उसे डांट कर बोली, ए लड़की, तू बड़ी बदकिरदार है। एक तो तू मेरे भाई को बहाने से अपने कमरे में बुलाती है और फिर इसी पर इल्जाम धर देती है। तू जैसी चालबाज लड़की हमने कहीं नहीं देखी। चच्ची की बात पर पलवशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, चच्ची, मुझ पर यकीन रखें, जामी झूठ बोल रहा है। मैंने इसे नहीं बुलाया। अल्लाह जानता है मैं बेकसूर हूं। ताई ने खींचकर तमाचा पलवशा के मुंह पर मारा और धाड़ कर बोली, बकवास बंद कर और कितना झूठ बोलोगी? न जाने कब से तुम ये खेल खेल रही हो और हमें पता भी न चला। और अब बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के हमारी ही आंखों में धूल झोंके जा रही हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी ये अदाएं हाजिम और दादी पर तो चल सकती हैं, हम पर नहीं। चच्ची ने सर झटक कर कहा,
यही दिन देखने बाकी रह गए थे। वन्नी में आई लड़की अब हमारे घरों के मर्दों पर नजरें डाले बैठी है। इस चीखो पुकार में चची ने एकदम से सर पर हाथ मारकर कहा, अरे फौरन दादी को बुलाकर लाओ, वो भी तो इस लड़की के कारनामे देखें। उन्हें बड़ी हमदर्दी थी ना पलवशे पर, उन्हें तो जरूर इस लड़की का असल चेहरा दिखाना चाहिए। दुर्रफिशा भागकर दादी को बुलाने गई और जब दादी वहां पहुंची तो ये सब देखकर उन्हें सांस लेना ही भूल गया। उन्हें जब पता चला कि पलवशा ने जामी को बुलाया है तो उन्होंने बेयकीनी से पलवशा की तरफ देखा। पलवशा ने रोते हुए दादी की तरफ देखकर कहा, यह सब झूठ है, मुझ पर बहतान है, मैं ऐसी नहीं हूं दादी, आप ये बात अच्छे से जानती हैं। मुझे बचा लें, मैंने कभी इनके हवाले से आपसे शिकायत नहीं की, लेकिन आज तो इन्होंने इंतहा ही कर दी। अब अल्लाह के बाद मुझे आपका आसरा है, इंसाफ कीजिएगा दादी, मैं बहुत मजलूम हूं, लेकिन मेरे पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं। दादी ने खामोशी से पलवशे की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गई। चच्ची ने पलवशा के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े और उसके कानों में चीख कर बोली, अब ये तस्वीर बहाने का कोई फायदा नहीं। दादी ने तुम पर यकीन नहीं किया, इससे ज्यादा तुम्हारी बदनसीबी और क्या होगी। चच्ची ने अपने साथ आए मुलाजमीन को इशारा किया तो उन्होंने पलवशा का सामान कमरे से उठाकर सहन में फेंक दिया। बाहर मौसलाधार बारिश हो रही थी। सर्दी और जिल्लत ने पलवशा के जिस्म को जकड़ लिया। वो सहन के कोने में सुकड़ सिमट कर बैठ गई। रो रो कर उसके पपोटे सूज गए और दिल बंद होने लगा। सहन में ठीक ठाक ठंड थी, उसका वजूद लरज रहा था। उसे यूं बेसरो सामानी के आलम में देखकर वहां से गुजरते जामी ने उसे देखा तो उसके करीब चला आया। उसके कदमों की चाप सुनकर पलवशा डर कर खड़ी हो गई। जामी ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, मेरी बात मान लो, वरना अभी तो कमरे से निकली हो, कल हवेली से निकलोगी। पलवशा ने चीखते हुए कहा, जामी तुम शैतान हो, तुमने मुझे बदनाम किया, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मेरा रब जानता है तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं बेकसूर हूं। जामी हंसने लगा, तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा, ये दरख्त, ये छत, या वो हाजिम जिस पर तुम्हें मान है। तुम बन्नी हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कोई हैसियत नहीं। मैं तुम्हें अपने घर की रानी बनाना चाहता हूं और तुम हो के भाग रही हो। पलवशा ने आंखों में अंगारे भरकर कहा, मैं मरना पसंद करूंगी मगर तुम्हारे जैसे दरिंदे की छांव कबूल नहीं करूंगी। उसी लम्हे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। जामी ने पीछे मुड़कर देखा और अगले ही लम्हे वो बिजली की रफ्तार से वहां से भागा। बारिश के साथ आसमान पर जोरदार बिजली कड़की और अगले ही लम्हे पलवशा की आंखों के सामने वो शख्स खड़ा था जिससे उसे एक उम्मीद थी, एक सहारा था। हाजिम। उसके होंठ कपकपाने लगे, बदन कांप रहा था, आंखें खौफ से फैली हुई थी। वो लरसते बदन के साथ रोने लगी। उसकी सिसकियां फजा में घुल रही थी और हाजिम वो एक मुजस्मा बन चुका था, पत्थर का बुत, जिसके सामने एक ऐसी हकीकत खड़ी थी जिसे समझने के लिए कई बरसों की अकल कम पड़ रही थी। हाजिम दादी सरकार की फोन कॉल पर दीवारों की तरह हवेली पहुंचा। गाड़ी हवेली के बाहर दरवाजे के सामने रुकी भी ना थी कि वो अंदर की तरफ लपका। उसके दिल में एक अजीब सा वसवसा, एक बेचैनी भरी थी, जैसे कोई अनदेखी मुसीबत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। कमरे के एक गोशे से आवाजें आ रही थी, मगर उसे सबसे पहले वो दिखाई दी जो सहन के कोने में सर्द मौसम में भीगे बालों और लरसते होंठों और कांपते जिस्म के साथ खड़ी थी। क्या बात है पलवशा, तुम यहां इस वक्त क्यों खड़ी हो और रो क्यों रही हो? पलवशा ने डरते डरते आंख उठाई। होंठ थरथरा रहे थे, आवाज रुक रुक कर निकल रही थी। आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना? उसकी बात सुनकर हाजिम का माथा ठनका, चेहरे पर सख्ती आ गई। ये कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं कोई कमजोर या बुज़दिल मर्द नहीं हूं जो औरत पर हाथ उठाए। और प्लीज हर वक्त इतना मत डरा करो, ये मेरी हवेली है, कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। तुम इस वक्त यहां क्यों खड़ी हो? मुझे कमरे से निकाल दिया गया है। हाजिम के चेहरे का रंग एकदम सुर्ख हो गया, गुस्सा अब ज़ब्त की हदों से निकल रहा था। तुम अजीब लड़की हो,
इस कदर डरपोक और बुज़दिल हो कि कोई तुम्हें कमरे से निकाले और तुम निकल जाती हो। वो कमरा तुम्हारा था, तुम्हें वहां से निकलने की जरूरत ही क्या थी? पलवशा ने रोती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। जबान पर अल्फाज आते आते रह गए। आंखों से बहते आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। इतने में पीछे से ताई और चच्ची भी वहां आ गई। चच्ची ने बिना कोई मौका जाया किए बगैर जहर उगलना शुरू कर दिया। अरे इस जैसी लड़की को तो कमरा तो छोड़ो, हवेली के इर्द गिर्द भी फटकने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये इंतहाई बदकिरदार लड़की है। तुम्हें पता है इसने क्या किया? इसने जामी को अपने कमरे में बुलाया। ये तो शुक्र है हम वक्त पर पहुंच गए, वरना न जाने कौन सा गुल खिलाने वाली थी। हाजिम ने पलटकर चच्ची की तरफ देखा। उसकी आंखों में गैज़ व गज़ब की चिंगारियां थीं, जिन्हें देखकर चच्ची सटपटा गई। उसने पलटकर पलवशा की तरफ देखा, जो रोते हुए सर नफी में हिला रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे नहीं बुलाया, मैंने दरवाजा भी बंद किया था, अल्लाह जानता है। चच्ची कुछ और बोलने वाली थी कि हाजिम ने पलवशा की कलाई पकड़ी और सीधा दादी के कमरे की तरफ चला गया। ताई और चच्ची भी पीछे पीछे चल दी। दादी जायनुमाज पर बैठी थी और आंखों से आंसू रवां थे। उन्होंने जैसे ही पलवशा को देखा, अपनी बाहें फैला दी। पलवशा भागते हुए उनकी गोद में समा गई और फूट फूट कर रोने लगी। गम ना कर बेटी, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, वही सच दिखाता है, वही इंसाफ करता है। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। चच्ची ये मंजर देखकर जल भुन गई। अरे कमाल है, आप एक बरकदार लड़की को सीने से लगा कर बैठी हैं। अगर ये वन्नी में आई लड़की किसी अच्छे खानदान और किरदार की होती तो हम भी इसे हमदर्दी करते। आपने खुद अपनी आंखों से देखा इसने किस तरह जामी को कमरे में बुलाया। वो मजीद कुछ कहने वाली थी कि हाजिम की आवाज कमरे में गूंजी। चच्ची मजीद एक लफ्ज भी मत कहना इस लड़की के खिलाफ, बहुत हो गया। उसने अपने खास मुलाजिम की तरफ इशारा किया। कुछ लम्हों बाद मुलाजिम अंदर आया। हाथ में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग थी। चलो अब सच देख लेते हैं। कैमरे में दिखाई दिया कि जामी और चच्ची पलवशा के कमरे के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। जामी ने चच्ची के इशारे पर दबे पांव अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद किया। अंदर जाते ही पलवशा चीखने लगी। उसे बार बार कहती रही कि निकल जाओ, निकल जाओ, मगर वो टस से मस ना हुआ। इतने में चच्ची ताई को साथ लाई और सब कुछ अपनी आंखों से देखने का ड्रामा किया। कैमरे की फुटेज देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें चच्ची की तरफ थीं, जिनका चेहरा हल्दी की तरह जर्द पड़ गया। उन्होंने बौखलाकर पलवशा को गालियां देना शुरू कर दी, मगर हाजिम के इशारे पर मुलाजमीन ने उन्हें दादी के कमरे से बाहर निकाल दिया। ताई की तरफ देखते हाजिम ने कहा, मेरे ख्याल में समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जो घटिया मंसूबे इस लड़की पर तोहमत लगाने के लिए बनाए गए थे, वो अल्लाह की फजल से नाकाम हो गए। अब इसे जीने दें। क्या कहती हैं आप? ताई ने बौखलाकर कहा। हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाजिम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो जानता था अब ताई में इतना दमखम नहीं रहा कि वो इसके सामने कुछ बोल सके। चच्ची और ताई के जाने के बाद हाजिम दादी के पास बैठ गया, जिनकी गोद में अब भी पलवशा सहम कर बैठी थी। दादी ने उम्मीद भरी नजरों से हाजिम की तरफ देखा। बेटा, इस लड़की का हाथ थाम लो, देख लो कैसी कैसी तोहमतें इस पर लगाई गई, जबकि मैं अच्छे से जानती हूं ये बहुत नेक और शरीफ बच्ची है। हाजिम ने मुस्कुराकर कहा, दादी, मुझे आपकी ये नेक और शरीफ लड़की कबूल है, लेकिन अगर ये सर उठाए आपकी गोद से तो तभी निकाह होगा ना। ऐसे गोद में घुसी रहेगी तो मैं निकाह कैसे करूंगा? ये सुनकर दादी ने एक जोरदार कहकहा लगाया, जबकि पलवशा ने शर्माकर खफा खफा नजरों से हाजिम की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। दिल की दुनिया में एक नई रोशनी, एक नया यकीन उतर आया था। जुल्म के अंधेरों में अब मोहब्बत की किरण फूटने को थी। उसने दिल ही दिल में ढेरों शुक्र अदा कर डाला कि उसे एक मजबूत हमसफर मिल गया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी
آپ کو وقت پر ملتی رہے۔